Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to English grade 9. Students, as you know, we are on our unit 4 and this is our second lecture. And today we are going to talk about conjunctions and also transitional words. या आप इसे transitional devices भी कह सकते हैं. Basically ये words होते हैं and they are used for a different purpose. Now let's read the SLO. It says examine and interpret the use of conjunctions and transitional devices in speech and writing to create the effect. Yes, definitely जब हम ये part of speech, ये tool या device use करेंगे, it will definitely create a very good effect on the reader or also the listener क्योंकि ये दोनों चीजें speaking में भी और writing में भी इस्तेमाल होंगी. All right. So सबसे पहले मुझे बताएं that do you have any idea, any previous prior knowledge about conjunctions, students? Yes, sir, we have learned conjunctions in grade 8. How do you categorize conjunction in grammar? किस तरह categorize करेंगे? सर conjunctions की टू टाइप होती हैं, coordinating conjunctions and subordinating All conjunctions, right. और ये यूज होती हैं कोई भी sentences को ज्वाइन करने के लिए, like and और fan voice conjunctions. Good answer. Now it's a part of speech. We are going to learn it with the different types followed by some examples. And transitional devices, obviously, this is related to our sentence structure. सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए और अच्छा ज्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस या वर्ड्स यूज करते हैं. नाउ one student have answered this question, so let's recall all of your knowledge of part of speech. Yes, all of these parts of speech, whether noun hai, pronoun, adjective, sare, they actively participate. और जब भी आप text देखेंगे, clearly you can spot each and every part of speech. Conjunction is very important. Why? Because it makes you a good writer and it makes you a good speaker. Let's see. Conjunctions, basically, they are words and these words are used to join other words. जब दो words होंगे उनको join करने के लिए या दो से ज्यादा, or it can also join phrases. We know what a phrase is. It's a group of words that does not make a complete sense. It's a phrase. And what are clause? What is a clause? Clause contains a subject and a verb. और क्लॉज भी दो तरह के होते हैं. One is the main and the other is the dependent. So independent clause और dependent clause या main clause और subordinating clause दोनों भी कहा जाता है. So you don't have to be confused about it. तो phrases को ज्वाइन करने के लिए, clauses को ज्वाइन करने के लिए और words को ज्वाइन करने के लिए we use some other words or those words are called conjunctions. Now here are some examples. And why do we use and? Addition के लिए ना, दो चीजों को इकट्ठा बताने के लिए. We use but, or. These are very common words and they are very common for joining different words, phrases and clauses. Now these are the three most common conjunctions, but there are many others. There is a whole list of words of either of the three types, coordinating, subordinating या correlative. सबकी एक लिस्ट है जो हमें याद करनी है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग है या ये कोरिलेटिव है. ऑल राइट, लेट्स सी दिस वर्ड, this statement. Actually it is containing three sentences. I like cake, I like pies, I do not like celery. Now क्या चीज आप इसमें देख रहे हैं? कंजंक्शंस नहीं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें सेपरेटली तीन सेंटेंसेस लिखने पड़े इंस्टेड ऑफ वन. तो इस तरह ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, 3 वर्ड्स के या 4-5 वर्ड्स के, ये बहुत बेसिक होते हैं. दिस प्रूव्स दैट यू डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट ग्रामर and you will be not considered a good speaker or a good writer. तो क्या करेंगे हम?
कंजंक्शंस को यूज करेंगे। और जब हम कंजंक्शंस को यूज करेंगे, हमारे ये तीनों की लेंथ देखें और इसकी देखें, शॉर्ट हो गई है। फुल स्टॉप भी एक ही, फुल स्टॉप एक लगाया हमने एंड में, एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। कंजंक्शन वर्ड्स हैं एंड, बट, टू कंजंक्शंस को यूज किया और सेंटेंस को स्मार्ट बना दिया हमने। स्मार्ट एंड वेरी, सच एन अट्रैक्टिव एंड अ गुड सेंटेंस। यहां पे क्या है, आई लाइक केक, आई लाइक पाइस, इसका मतलब है इसे दोनों चीजें पसंद है, तो हम इसे इकट्ठा क्यों नहीं कर देते। बट उसे सिलरी विच इज अ काइंड ऑफ अ वेजिटेबल ये पसंद नहीं, तो हमने क्या किया, आई लाइक केक एंड पाइस, इन दोनों नाउन्स को इकट्ठा कर दिया एंड के साथ। अब जो चीज नहीं पसंद उससे बट लगा दिया। बट इज, व्हाट डू यू कॉल बट इन उर्दू, लेकिन। लेकिन क्या नहीं पसंद, सिलरी नहीं पसंद। सो हमने कितने, दो कंजंक्शंस यूज किए, दोनों के अपने फंक्शंस हैं। एक है दो चीजों को जोड़ने के लिए, सिमिलर चीजें, नाउन्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं, और एक हमने एक्सेप्शन के लिए यूज किया कि ये नहीं, तो ऑपोजिट के लिए भी हमने एक कंजंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। जी स्टूडेंट, समझ आ गई आपको कि कंजंक्शंस क्या हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं? क्लियर है? जी आगे Yes. लेट्स मूव फॉरवर्ड। So we have different kinds of conjunctions. Number one is coordinating conjunction. Coordinate का मतलब है आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलना. They coordinate with each other. And that's how we fulfill our purpose. Now, coordinating conjunctions join like with like. Likeness will be joined. For example, they will join a noun with another noun. जैसे हमने यहां पे देखा, नाउन के साथ नाउन को ज्वाइन कर दिया, और दे कैन ऑल्सो ज्वाइन एन एडजेक्टिव विच शोज क्वालिटी और एड मोर डिस्क्रिप्शन टू द नाउन, एंड वी कैन डू इट विद अनदर एडजेक्टिव. नाउ द मोस्ट कॉमन वंस आर एंड, बट, एंड, और. ये बेसिक कंजंक्शंस हैं, और ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग, ये सबऑर्डिनेटिंग नहीं है, ये कोरिलेटिव भी नहीं है. These will be categorized as coordinating conjunctions. Now, there are 7 of them, right? For, and, nor, but, or, yet, so. Fanboys लफ्ज याद करेंगे तो आपको कोई भी कंजंक्शन भूलेगी नहीं कोऑर्डिनेटिंग में. ऑल राइट, यहां पे ऑब्वियसली अगेन इट्स अ निमोनिक. निमोनिक हम बनाते हैं लफ्जों के पहले लेटर से, और हम एक ऐसा लफ्ज बनाते हैं या ऐसा जुमला जो हमें चीज को याद करने के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए हम इस तरह के निमोनिक्स को बनाते हैं. फॉर क्यों यूज करते हैं हम? टू गिव अ रीजन, गिव्स अ रीजन व्हाई. एंड इज यूज टू जॉइन सिमिलर आइडियाज, मतलब सिमिलर नाउन, सिमिलर एडजेक्टिव्स. नॉर इज यूज्ड इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ और. हम कहते हैं ना पेन और पेपर, राइट? अब उसी की एक नेगेटिव फॉर्म है नॉर. इट इज हाउ द और वर्क्स. बट इट शोज अ कॉन्ट्रास्ट, कि अब एक ऑपोजिट बात होने वाली है. जैसे आई लाइक पाइज, आई लाइक केक, आई लाइक पाइज एंड केक, बट अब जो आने वाली चीज है, आई डोंट लाइक इट. So that's why we use but to show a contrast. Or is used to give, it gives a choice. For example, I give you this choice. What do you want? The pointer or this marker? और इसका मतलब है दोनों चीजें ऑफर नहीं कर रहा मैं. I am just offering one of them. ये या ये. So if you want to give choices, that's why you use or. Yet gives a contrast. For example, she didn't prepare for the exam yet she passed. उसके बावजूद भी, ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट के लिए. और so is used for showing cause and effect. cause क्या होता है?
कोई अमल जिससे एक रिएक्शन आएगा, वो उसका इफेक्ट होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट यानी रीजन और रिजल्ट को बताने के लिए वी विल यूज सो। ऑल राइट, हियर अगेन ये देखें, दिस इज हाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्क्स। एंड हम एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट को हम ऑपोजिशन के लिए, और को हम चॉइस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और सो को हम रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये दिखाने का मकसद था कि आपको हर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो वर्किंग है, उसका जो पर्पस है वो समझ आ जाए, और आप कंजंक्शंस को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि उनके ऑपोजिट। जी, अब आप जल्दी से बताएंगे। जो स्टूडेंट जल्दी से बताएगा, आई विल कॉल आउट द नेम एंड आई विल अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट। यस, यहां पे तीन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट सेंटेंस है जी, ही वॉज रनिंग टू फास्ट ब्लैंक। बट जस्टिफाई करें, बट कैसे आएगा जी? सर बिकॉज वो कंपैरिजन टाइप कुछ कर देखे रहे ना, ही हैं। वॉज रनिंग टू फास्ट। जो जो ज्यादा तेज भागेगा, चांसेस हैं वही गिरेगा। इसमें तो ऑपोजिशन नहीं है। सोचें कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा? ही वॉज रनिंग टू फास्ट एंड फेल ओवर। ऑलराइट, एंड वाई? क्योंकि ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं। अब हम अगर कहेंगे ही वॉज रनिंग टू फास्ट और फेल ओवर, और तो हम चॉइस के लिए यूज करते हैं, बट को तो हम कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे एंड आएगा, क्योंकि इस अमल की वजह से रनिंग टू फास्ट एंड फेल ओवर। ऑलराइट, आई विल रीड अ बुक और और पेंट अ पिक्चर आफ्टर स्कूल। ऑलराइट, तो द स्पीकर इज नॉट इज हैविंग टू चॉइसेस, या वो he will paint a picture or he will read a book। या क्या इसमें एंड आ सकता है? आई विल रीड अ बुक एंड पेंट अ पिक्चर आफ्टर स्कूल, दोनों चीजें भी की जा सकती हैं। ऐसे ही है स्टूडेंट्स। यस तो एंड भी, बट नहीं आ सकता यहां पे, बिकॉज बट का फंक्शन कॉन्ट्रास्ट के लिए है। Sally was told to tidy his room, tidy means cleaning, to clean his room, he read a book instead। How? सर ओनली सैली बट को कहा गया टू क्लीन हिज रूम। इंस्टेड के हम इंस्टेड वर्ड से हमें पता चला कि उसने रूम क्लीन नहीं किया, बट किताब को पढ़ा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? बट, क्योंकि अगर यहां पे हम एंड ऐड करेंगे, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। और ऐड करेंगे तो वो तो नहीं है, उसके लिए तो चॉइस चॉइस का होना जरूरी है। तो दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्क्स। नाउ, अब निमोनिक्स भी आपको क्लियर हो गया। फैन बॉयज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो किस तरह यूज होंगे लॉजिकली। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अनदर टाइप ऑफ कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू मेन क्लॉज। क्लॉज क्या है? दो तरह के होते हैं ना। एक क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और वो पूरा सेंस बनाता है ऑन इट्स ओन, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक क्लॉज होता है जो डिपेंडेंट होता है दूसरे क्लॉज पे, उसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। तो ऐसे दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम क्या लफ्ज यूज करते हैं? कंजंक्शन। और वो कौन सी कंजंक्शन होगी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ लिंक करेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। These are although, because, if, since, unless, until, while, और भी बहुत सारे subordinating conjunctions हैं। It is funny. Why it is funny? Because it is true। अब देखें, अगर आप ये सेंटेंस का पार्ट लें, दिस क्लॉज, बिकॉज इट इज ट्रू, बिकॉज इट इज ट्रू, कोई सेंस बन रहा है इसका स्टूडेंट्स? बिकॉज से पहले क्या था? तो ये कौन सा है? ये एक क्लॉज है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पे डिपेंड कर रहा है?
इस वाली चीज पे। अगर हम कहें इट इज फनी, जुमला मुकम्मल है, ये एक फनी बात है या फनी चीज है, समझ आ गई। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या लफ्ज यूज करेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब यहां पे बताएं, ये है जी अंटिल द रेन, अंटिल द हेल स्टॉप्स, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करेंगे उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। तो Sir, what is the hail? व्हाट, सॉरी? What is meant by hail? Hail can be any incident or accident or any march. So you can it depends on the context. All right, it can be called a march. All right. Now, अब ये पहला सेंटेंस जो है, she wanted to go to the park, her friends preferred hiking. दो सेंटेंसेस हैं, ऐसे ही है, दो हैं। हमें इन्हें ज्वाइन करना है कंजंक्शन का यूज करके। कैसे करेंगे जी? जल्दी से। She wanted to go to the park, but Until her friends preferred hiking. Alright? वो तो पार्क जाना चाहती थी, फ्रेंड्स हाइकिंग पे जाना चाहते थे। कॉन्ट्रास्ट आ गया, ऑपोजिट चीजें आ गई। तो ये एक आपके लिए असेसमेंट है कि आप डिफरेंट सेंटेंसेस को लें और उनको ज्वाइन करें आपस में यूजिंग कंजंक्शंस। सेकंड वन, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, सम स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड। but some येट येट फिर भी टीचर ने लेसन एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज थे। कैसे? ये देखें, येट है ना, गिव्स अ कॉन्ट्रास्ट, येट। ऑल राइट, so next one you can study now, you can relax and do it later जी। or और यू कैन, यस, इट गिव्स यू अ चॉइस। अब ये 4 5 6 आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप लिख लें इसे, और व्हेन यू गेट द रिसोर्सेज यू कैन टेक दीज 3 रिमेनिंग सेंटेंसेस एंड देन ज्वाइन देम टुगेदर। कोरिलेटिव में कंजंक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जिसमें दो वर्ड्स होते हैं और दो एक तरह एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये रेलेवेंट रिलेटेबल कंजंक्शन है, एक साथ ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, देखें, आई कैन बेक आइदर मफिन्स और टी केक्स। तो आइदर और एक साथ ही इस्तेमाल होगा, क्यों? चॉइस के लिए। और इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का नाम देंगे। ये देखें, नाइदर नॉर, इस जुमले में देखें नॉट ओनली बट ऑल्सो, हमेशा एक साथ इस्तेमाल होंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। अब जल्दी से इसको करें। आई लव फिश एंड चिप्स, एंड क्या है? जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स। coordinating कोऑर्डिनेटिंग, conjunction. वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ही इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो हैंडसम। Correlative. कोरिलेटिव, यस। कैसे? नॉट ओनली बट ऑल्सो। कीप रनिंग अंटिल यू हियर द विसल। Subordinating. क्यों? उसने कंडीशन लगा दी ना, कीप रनिंग। कब तक? अंटिल यू हियर द विसल। सो अंटिल यू हियर द विसल ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज पे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से बताइए, इफ यू आस्क मी अगेन आई विल लीव, इफ, क्या ये कोरिलेटिव है, कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग? सबऑर्डिनेटिंग। I Subordinating can conjunction. I can neither see you nor hear you. Correlative. कोरिलेटिव, कि मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा और सुन भी नहीं पा रहा, दोनों चीजों के लिए शट अप और गेट आउट,
This is obviously coordinating. Coordinating. ठीक है जी. Transitional devices are words that connect these different ideas together. We are short of time. We are just going to go through them quickly. Addition के लिए हम इस्तेमाल करते हैं and, also, in addition या furthermore etc. Contrast, cause and effect, sequence, emphasis or example. For all of these different situations we have different conjunction, we have different transitional words. ये transition करता है ना एक से दूसरी की तरफ. All right, we have all these resources for you for better understanding. I hope that today's lesson is very much clear. Transitional devices and conjunctions, in which we saw three different types of conjunctions with examples. Thank you, students. I'll see you in the next video lesson. We are also planning out your assessment. It will going to be happen really soon. I hope that everything is clear. किसी का कोई question है तो please अभी you can ask it. Any kind of question? जी. Thank you so much. Take care of yourselves and Allah Hafiz.